morning, students. Today, read topic life process. All animals and organisms, a life process mainly necessary. Yeah, life process depend four phases. First, nutrition. ऑल एनिमल्स को लिविंग रहने के लिए न्यूट्रिशन नेसेसरी है. विदाउट न्यूट्रिशन डू नॉट कंपेयर लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट न्यूट्रिशन. सेकेंड पार्ट ट्रांसपोर्टेशन. Nutrition do not pass any organism. Each cells do not nutrition reached any cells, so life process do not compare. So transportation most important phase, a part of life. Third part life process, respiration. Simply, without respiration do not compare life, because all cells after respiration complete our process and maintain life process. So life process mainly depend nutrition, transportation and respiration. Fourth part excretion. So guys, लाइफ प्रोसेस में 4 पार्ट होंगे जिसके अकॉर्डिंग लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखा जा सकता है या प्रॉपरली कंटिन्यूअसली लाइफ प्रोसेस को बनाए रखा जा सकता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू. फर्स्ट है कि लाइफ को मेंटेन रखने के लिए न्यूट्रिशन एक नेसेसरी पार्ट है. सेकंड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए इस सेल तक. थर्ड पार्ट है रेस्पिरेशन. विदाउट रेस्पिरेशन बॉडी के अंदर सेल्स में डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगा. फोर्थ पार्ट है एक्सक्रीशन, यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद में जो वेस्ट मटेरियल है उसको पास आउट करने का भी प्रोसेस होना चाहिए, बिकॉज वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने की लिमिट लिविंग ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल होती है. सो लाइफ प्रोसेस में 4 टाइप्स होंगे, या यूं कहें कि लाइफ प्रोसेस जो है वो इन 4 पॉइंट्स के आधार पर हम डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रिशन का. न्यूट्रिशन जो है मेनली या नेसेसरी पार्ट है लाइफ प्रोसेस का. रिपीट अगेन, न्यूट्रिशन मेन पार्ट फॉर लाइफ प्रोसेस, बिकॉज डिफाइन करेंगे हम न्यूट्रिशन को कि न्यूट्रिशन क्या है. दोज प्रोसेस of providing or obtaining. Repeat again, nutrition definition: the process of providing or obtaining the food necessary for health and growth. Nutrition definition
न्यूट्रिशन डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग, कि वह प्रोसेस जो प्रोवाइड करवाती है एंड ऑब्टेन करती है द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्थ एंड ग्रोथ को प्रोवाइड करवाती है, साथ में डिजीज के अगेंस्ट मेंटेन करती है बॉडी को। साथ में न्यूट्रिशन जो है मेंटेन करेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी, एंड हेल्थ एंड डिजीज से भी प्रिवेंशन देता है, हेल्थ को भी बनाता है। सो न्यूट्रिशन आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। सेकंड, बात करते हैं न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो मेनली न्यूट्रिशन टू टाइप्स, टाइप ऑफ nutrition. So nutrition mainly two types. First, listen be carefully, definition of nutrition. Second point, type of nutrition. The type of nutrition mainly two types. First, autotrophic nutrition, autotrophic nutrition. Second, heterotrophic nutrition. Nutrition mainly two types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, in this condition all organism can make one food. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी अपना फूड स्वयं बनाते हैं, बट हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में दोज ऑर्गेनिज्म which cannot make one food, simply in this condition organism which can make one food are called heterotrophic, but heterotrophic organism which cannot make one food are called heterotrophic. Simply, how many types of nutrition? Nutrition mainly two types. First, autotrophic nutrition. Second, heterotrophic nutrition. First, autotrophic nutrition. Those organisms which can make one food are called autotrophic. But heterotrophic nutrition, those organisms which cannot make one food are called heterotrophic. So, autotrophic nutrition example of autotrophic nutrition, simply all plants, and heterotrophic example animals. Simply autotrophic nutrition process completes photosynthesis, repeat again, all autotrophic plants are make one food, photosynthesis, but heterotrophic organisms do not make one food. So simply टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करा हमने। न्यूट्रिशन टाइप्स टू हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सिंपली हम बात करते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
Heterotrophic nutrition. Many three types of heterotrophic nutrition. First, holozoic nutrition. Second, spirophytic nutrition. Third, parasitic nutrition. First, holozoic nutrition. Holozoic nutrition में वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो भोजन को फास्ट स्विंग करते हैं, चबाते हैं, उसके बाद में उसका डाइजेशन होता है और फिर एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस होती है उनकी बॉडी के अंदर. सो होलोजिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, द organism feed by ingesting solid organic matter. यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जो फीड बाय इंजेक्शन, इंजेक्ट करते हैं और बॉडी में सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज द डाइजेस्ट, फिर उनका डाइजेशन होता है एंड अब्जॉर्ब्ड इनटू देयर बॉडीज, और अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व करते हैं, आर कॉल्ड होलोजोइक टाइप एनिमल्स या होलोजोइक न्यूट्रिशन. Second, spirophyte nutrition. According spirophyte nutrition, those organisms feed on dead and decaying matter. Spirophytes nutrition. Those organisms feed on dead and decaying matters, include bacteria and fungi, which digest the food externally before the nutrients are absorbed. Simply कि स्पेरोफाइट न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपना फूड डेड मैटर से लेते हैं, स्पेशली इनमें इंक्लूड होंगे जैसे बैक्टीरिया, फंगाई. ये क्या करते हैं कि जो फूड है उसको एक्सटर्नली इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद में उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है. थर्ड है पैरासाइटिज्म न्यूट्रिशन. इस न्यूट्रिशन के अंदर दोज ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे जो अपना फूड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोवाइड होता है उनको. सिंपली द ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. पैरासाइट्स जो हैं अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जबकि स्पेरोफाइट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म थे वो अपना फूड प्रोवाइड कर रहे थे या कलेक्ट कर रहे थे डेड सेल से या डिसाइंग मैटर से. जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, ये स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं. बट पैरासाइटिज्म, पैरासाइट्स क्या करते हैं अपना फूड ऑब्टेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जबकि होलोजोइक टाइप्स के जो एनिमल्स थे वो फर्स्टली अपने फूड को चबाकर आफ्टर उसके फूड में डाइजेशन की प्रोसेस होती थी, फिर एब्जॉर्प्शन के थ्रू बॉडी के अंदर सेल्स को एटीपी प्रोवाइड होती थी, जबकि पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट करते हैं. सेकंड, द पैरासाइट न्यूट्रिएंट ऑफ लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट. ये किसी होस्ट की बॉडी पर अटैक करके अपने फूड को कलेक्ट करते हैं, जैसे टैपवॉर्म. सिंपली पैरासाइट्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड कलेक्ट करते हैं, जबकि स्पेरोफाइटिक जो एनिमल्स हैं या स्पेरोफाइट जो न्यूट्रिशन है इसमें वो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिसेइंग मैटर से अपना फूड कलेक्ट करते हैं, जबकि होलोजोइक टाइप्स के जो न्यूट्रिशन है उसमें दोज एनिमल्स इंक्लूड होंगे जो अपना फूड स्वयं चबाकर डाइजेस्ट करके और एब्जॉर्ब करते हैं. तो हमने सिंपली टुडे लाइव प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था. लाइव प्रोसेस में सबसे पहले हमने बात करी थी कि लाइफ प्रोसेस में स्टेप कौन कौन सी होंगी जिससे लाइफ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन किया जा सके. इसमें 4 फेजेस थी. फर्स्ट था न्यूट्रिशन, सेकंड था ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड था रेस्पिरेशन, फोर्थ था एक्सपिरेशन. तो आज हमने फर्स्ट टॉपिक की बात की थी न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी ग्रोथ एंड हेल्थ आर कॉल्ड न्यूट्रिशन.
टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो मेनली न्यूट्रिशन टू टाइप्स के थे। फर्स्ट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेकंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में those organisms which make one food, example for plants में food make की process photosynthesis, but heterotrophic nutrition those organisms which can make do not want food। so हमने बात की थी आज न्यूट्रिशन में उसके टाइप्स में थे, तो टाइप्स के बाद में हम बात करेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को सिंपली 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, होलोजिक न्यूट्रिशन, स्पोरोफाइटिक्स और पैरासाइट न्यूट्रिशन।